last class we learned about the word equation and symbol equation. What is the word equation and how we will write the symbol equation. We are repeating it. Word equation means when a chemical reaction write with their names. This is one chemical equation, that is we are writing here magnesium plus oxygen, then arrow pointing towards the product side. So on the left hand side, this is the left hand side of the reaction and this is the right hand side of the reaction. So on the left hand and it separates with the help of arrow. Arrow always pointed towards the product. This is reactant side and this is product side. So then this is known as the word equation. When we write the symbols of the elements instead of word, instead of their name, that is known as symbol equation. That is, symbol for magnesium is Mg, symbol for oxygen is O, and oxygen as it is a gas, it is written as O2. Then the product which will be formed after the reaction of magnesium and oxygen is magnesium oxide. That is, the magnesium oxide formula is MgO. So in symbol equation we write chemical symbols or chemical formulas of the reacting elements instead of their names. This word symbol equation is also known as skeleton equation. Skeleton equation क्यों? Because as we see in the reaction, it is not balanced. Here 1 Mg on the left hand side of the reaction and here and on the right hand side there is 1 Mg. But when in case of oxygen, on the left hand side there are 2 oxygen atoms. This two oxygen atoms and here 1 oxygen atom. Then it is not balanced. So the reaction, the chemical reaction which is not balanced, that reaction is known as skeleton equation. सिंबल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन भी कहाँ जाती है? स्केलेटन इक्वेशन किसे कहेंगे कि जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिखी है वो अगर बैलेंस नहीं है तो, और उसके प्रॉपर जो भी स्टेट होंगे फिजिकल स्टेट वो लिखे हुए नहीं है, सो उसे हम लोग कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन. जब उसे बैलेंस कहेंगे उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पर बैलेंस नहीं है, हम लोग लिखेंगे तो ये जो है ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है. अब ये कैसे बैलेंस हुई है, आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए. तो सेम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन ले रहे. व्हेन मैग्नीशियम ट्रिटोन इज बर्न इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट होगा. व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज द थ्योरी पार्ट. देन we have to write this word equation first. After writing this word equation we have to write skeleton equation or symbol equation and then we are going to balance that skeleton equation. Okay, so while balancing the chemical equation, one method we do, that is hit and try method. So balancing of chemical equation is done by the method that is known as hit and try. What happens here? We wrote the equation. We have to wrote the equation. In short, I am going to tell you there are different steps. Step by step is given in your textbook. So you have to go through it thoroughly and try to balance it. I am just showing you what happens here. We wrote the chemical equation, that is skeleton equation. Now we are going to balance. So what we have to do? We have to separate apart the two sides of the reaction, that is LHS left hand side and RHS. किससे करेंगे तो इसके थ्रू, एरो के थ्रू. एरो के लेफ्ट हैंड से अपना पार्ट है वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाना बैलेंस करने के लिए. तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस हमें करना होगा एटम्स को. ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दोनों साइड में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं. ये एलिमेंट्स दोनों साइड में बैलेंस होना जरूरी हो जाता है, तभी हम लोग बैलेंस. क्यों? क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में लॉस पढ़े केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस. एक
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें ये जो लॉ है ये प्रूव करना है, होना चाहिए कि रिएक्टेंट का मास जितना है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। और अगर यहाँ मास ज़्यादा हुआ और यहाँ कम हुआ, रिएक्टेंट में कम हुआ प्रोडक्ट में ज़्यादा हुआ, या रिएक्टेंट में ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट में कम हुआ, क्या होगा? रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। कभी मार्केट में सब्जी लेने गए हो या किराना दुकान में सामान आए तो कभी ऊपर नीचे रख के दिया है क्या अपने को? तौल के देते सेम दोनों साइड का वेट। 1 किलो का वेट रखा होगा तो 1 किलो ही तौल कर देंगे, 1.25 किलो, 1.5 किलो या 5 किलो, आधा किलो तो नहीं देंगे हम। वैसे ही हमें यहाँ पर बैलेंस करना जरूरी है कि मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इम्प्रूव रख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इसलिए दोनों साइड के जो आइटम्स है, एलिमेंट के आइटम्स है, दैट वी हैव टू बैलेंस। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए इस साइड से बताता हूँ। इसमें दिया हुआ है एलिमेंट। एलिमेंट वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट हमें सेम दिखेंगे, उन एलिमेंट्स की लिस्ट हमें यहाँ लिख देनी है। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स कितने होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी क्वांटिटी, और राइट हैंड साइड में जैसे हमने यहाँ लिखा है मैग्नीशियम। पहले मैग्नीशियम क्या होगा? इनिशियल लेवल पर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ 1 लिखा है मैग्नीशियम, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इनिशियल लेवल पर 2 है। चलो अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम इनिशियल लेवल पे 1 है, सेम हुआ। मैंने डैश दिया मतलब हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है इनिशियल लेवल पे, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 1 टू बैलेंस, 1 टू बैलेंस, हमें 1 की जरूरत है जो बैलेंस होना चाहिए। हम जब देखेंगे तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर? मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ मैग्नीशियम सिंगल है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अभी कंडीशन बैलेंस नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस हम करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसे बैलेंस करना है। अब मैग्नीशियम को दोनों साइड में से मिलकर हमने अटैच कर दिया या फिर छोड़ दिया, जरूर नहीं करना, क्यों? ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही आए, तो हमें सुटेबल कोएफिशिएंट्स लगाने पड़ेंगे। कैसे? अब मैंने कहा था कि ऑक्सीजन दोनों मतलब ये 2 डिनोट करता है। कोएफिशिएंट मैथमेटिक्स में सीखो, किसी भी जैसे इक्वेशन में मैं लिख रहा हूँ x² + 2x + 4, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, दिस इज वन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर दिस 2 which is written in front of x, that 2 is nothing but the coefficient। तो यहाँ पर भी हमें इन जगहों पर जहाँ भी पॉसिबल होता है, जहाँ भी जरूरत है, वहीं पर कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। फिर ये कोएफिशिएंट 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है, जितने की जरूरत होगी। अब ये जो कोएफिशिएंट लगाएंगे, ये कोएफिशिएंट इनके साथ के फॉर्मूले के साथ में मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम के पहले कुछ नहीं है, हम एज्यूम करेंगे कि 1 है कोएफिशिएंट, वो 1 लिखा नहीं जाता। दैट मींस 1 * mg, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर ये 2 है, मतलब 2 * O हो गया। यहाँ पर MgO में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 * mg हो जाएगा, बराबर। अब ये हमें करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इस समय में बैलेंस करते वक्त हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब हमारे पास हमने देखा है कि मैग्नीशियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, हमें ऑक्सीजन करना है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना? 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 आइटम है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ, बिल्कुल यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ कोएफिशिएंट, इफ आई रोट हियर 1, व्हाट हैपेंस? 1 * O, 1 ही हो गया, यानी 1 ही वो आ गया हमारे पास, बैलेंस हुआ, 1 ही हुआ। यहाँ कितने हैं? 2 है, नहीं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 लिख के लिखता हूँ, मैंने 2 लिख दिया। मैंने पहले 1 लिखा था, नहीं हुआ, गलत हो गया। फिर अब मैं लिख रहा हूँ 2 जब मैंने लिखा था 2 * O, मतलब कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन एटम्स हो गए 2O। यहाँ पर कितने हुए? 2,
ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड हियर ट्वाइस NgO। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर दो इधर दो। बट मैंने यह देखा कि अब मेरा जो मैग्नीशियम ये बिगड़ गया, मेरा जो मैग्नीशियम है वो बिगड़ गया। मैग्नीशियम मेरे एक एक थे, लेकिन अब यहाँ पर मैग्नीशियम दो हो गए और यहाँ पर एक ही आ गया। अब कैसे करूँ? तो अब क्या करूँगा, इसको भी मुझे बदलना पड़ेगा। ये 1 × Mg था, मतलब 1 था, मुझे इसे बदलना पड़ेगा 2 × Mg। अगर मैं लिखूँ तो ट्वाइस Mg हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, क्या हो गया फिर 2 Mg + O2 प्रोड्यूस और yield ट्वाइस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द वे टू बैलेंस द रिएक्शन। अब हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने नाम कहा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड कह रहे हैं। क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड कह रहे हैं? क्योंकि हमने पहले एक लगाया, क्या हुआ, नहीं गलत, फिर 2 लगाया। इनकेस अगर 2 भी लगाने से ये बैलेंस नहीं होता तो हम लोग 3 ये कोएफिशिएंट यूज करते, उससे भी नहीं होता तो 4 यूज करते। इसलिए हिट एंड ट्रायल, हिट करो लगा तो 6 नहीं तो क्लीन बोर्ड। तो कोशिश इसलिए उसको कहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह से बैलेंस कितना आ गया था ये हमें पता चला, फिर हमें किससे करना है बैलेंस ये हमें देखना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड इन दिस some steps are involved. That is, first write the chemical equation in the form of word equation. Reactants written on the left hand side while products on the right hand side, and these are separated by the help of arrow always pointed towards the product side. Then convert this word equation into symbolic equation or scalar equation. Make the element on both the sides of the equation equal by adding the suitable coefficient which we done, and formula of the substance should remain unchanged while balancing the equation. हाँ, ये मेन चीज है कि जब कभी हम इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उस समय हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला जो है वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें कोएफिशिएंट बदलकर, अब ये इसका भी बनेगा, O2 की जगह E लिखता है, ये वो लिखता हूँ ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज रहेगा, ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट बदल कर लेना। तो यही बात का ध्यान रखो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो नीड टू बैलेंस अ वर्ड इक्वेशन, हाउएवर इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स और फॉर्मूले से जो लिखा हुआ इक्वेशन है उसे हमें बैलेंस करना जरूरत है, वर्ड इक्वेशन को कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, आपको और समझ में आ जाएगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। इससे हमारे पास तैयार हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कम होने की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ये हो गया वाटर, आपको तो सीधे रंग लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास है CH4 प्लस ऑक्सीजन O2, यील्ड हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2, वाटर हमें पता है H2। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरी स्टेप होगी इसे बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद की स्टेप होती है जो मैंने यहाँ लिखा हूँ। मैं कंक्लूड करने से पहले दैट कि ये जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके फिजिकल स्टेट्स लिखना जरूरी है। कि मैग्नीशियम की स्टेट में है, उनकी स्टेट लिखो, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये स्टेट कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हो गया। इसके चौथी एक है दैट इज नोन एज एक्वस। तो हम लोग अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो हम लिखेंगे एस ब्रैकेट में, जो यहाँ मैंने लिखा है। अगर वही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड है तो हम लोग स्मॉल एल लिखेंगे। वो अगर गैसेस स्टेट में है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो हम लोग लिखेंगे जी। गैस के जगह पर हम लोग एरो अपवर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं जी के बजाय वो लिखने के लिए।
सॉलिड है अगर प्रेसिपिटेट है मतलब नीचे जमा हुआ प्रोडक्ट है तो प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखा जाता है जिसके लिए डाउनवर्ड एरो यूज होता है। ये कुछ सिंबल्स भी है कि ये स्टेट्स लिखने के काम में है, ये जरूरी है। इनकेस अगर आपको कंफर्म नहीं हो तो ना लिखे, लेकिन कंफर्म है तो लिखिए, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह से। एक और होता है एक्वस। एक्वस एक्वस अगर है प्रोडक्ट है तो उसको लिखेंगे इक्विलिब्रियम। अभी एक्वस क्या है, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया गया, व्हेन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिक्स्ड विद द वाटर एंड दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन और द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड विद द वाटर और इन वाटर, देन इट इज नोन एज एक्वस। सॉलिड है, पानी में सॉल्यूशन बनाकर अगर हम यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्वस। तो हम लोग इनका यूज कर सकते हैं और ये जब हम लिखेंगे, और लास्ट थिंग दैट द नेम्स ऑफ दिस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन है, ऑक्सीजन गैस, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से ये आखिरी स्टेप खत्म। सेम हम लोग यहाँ रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अलग, when methane gas reacts with oxygen gas, it released or it forms the carbon dioxide gas with water. Then we wrote the chemical formula, that is the symbolic equation or Schneider equation we can say, because it is not balanced. अब आगे बैलेंस की, तो बैलेंस करते हैं तो फिर से हमारे पास कौन कौन है पहले वो लिखना